بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم منسوخ التلاوتی دون الحکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَتِلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمِثْلُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بِزِيَادَةِ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا مَكَانَ قَوْلِهِ أَيْدِيَهُمَا وَنَسْخُ وَصْفٍ فِي الْحُكْمِ بِأَن يُنسَخَ عُمُومُهُ وَإِطْلَاقُهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ كَزِيَادَةِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ الثابت بالكتاب فإن الكتاب يقتضي أن يكون الغسل هو الوظيفة للرجلين سواء كان متخففا أو لا والحديث المشهور نسخ هذا الإطلاق وقال إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين فالآن صار الغسل بعد الوظيفة فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي تخصيص وبيان فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر أو بالمشهور كسائر النسخ وعنده يجوز بخبر الواحد والقياس كباقي البيان حتى أثبت زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد وهو قوله البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام فإنه خبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الجلد فقط عنده وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والزهار بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإيمان فإنه يجوز الزيادة به على نص الكتاب الدال على الإطلاق ومثل هذا كثير بيننا وبينه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور منسوخ التلاوت نہ کہ حکم، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور مثال کے طور پہ حضرت ابن مسعود کی قرات ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، اس میں متتابعات کا لفظ زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ قول فقطعوا ایمانہما، ایمانہما کا لفظ ہے ایدیہما کی جگہ پر۔ اور وصف کا منسوخ ہونا حکم میں بئی طور کے حکم کا عموم اور اطلاق منسوخ ہو جائے اور اس کی اصل باقی رہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نص پر اضافہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ مسح خفین کا اضافہ کرنا پاؤں کے دھونے پر، جو کہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ تقاضا کرتا ہے کہ غسل یعنی دھونا یہ پاؤں کا وظیفہ ہو، چاہے آدمی نے موزے پہنے ہوں یا موزے نہ پہنے ہوں۔ اور حدیث مشہور نے اس اطلاع کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ دھونا اس وقت ہے جس وقت موزے نہ پہنے ہوں، اب دھونا یہ وظیفے کا بعض حصہ بنے گا، تو یہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخصیص اور بیان ہے، لہذا ہمارے نزدیک چونکہ یہ نسخ ہے، اسی وجہ سے سوائے خبر متواتر اور مشہور کے جائز نہیں ہے، جیسا کہ تمام نسخ کے احکام ہوتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خبر واحد اور قیاس سے بھی جائز ہے، جیسا کہ باقی بیان میں ہوتا ہے۔ یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے جلا وطن کرنے کو، کوڑے مارنے کے اوپر خبر واحد کے ذریعے سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام۔ اب یہ خبر واحد ہے، لہذا اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر اضافہ کرنا جائز ہے، جو کہ صرف اور صرف کوڑے مارنے پر دلالت کرتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور ایمان کی قید کا اضافہ کرنا کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں، یہ قیاس کے ساتھ ہے، قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر جس میں ایمان کی قید لگائی گئی ہے، یہ جائز ہے اضافہ کرنا اس کے ذریعے سے کتاب کی نص کے اوپر، جو کہ دلالت کرتی ہے مطلق پر، اور اس جیسی مثالیں ہمارے اور ان کے درمیان کثرت سے ہیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ منسوخ کی اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ منسوخ کی 2 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے، منسوخ کی باقی 2 قسمیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو منسوخ کی تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ منسوخ التلاوت دون الحکم، یعنی تلاوت یہ منسوخ ہو چکی ہو لیکن جو اس کا حکم ہے وہ باقی ہو۔ اب اس کی مثال یہ ہے، قرآن مجید میں پہلے ایک آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، مطلب اس کا یہ ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب دونوں زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کرو، ان دونوں کو سنگسار کرو، ان دونوں کو پتھر مارو، یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ والی آیت پہلے قرآن مجید کا حصہ تھا، بعد میں یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اگر بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بھی زنا کریں گے تو ان دونوں کو بھی رجم کیا جائے گا۔ تو یہ مثال ہے منسوخ التلاوت دون الحکم کی، کہ تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اسی کی ایک اور مثال حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے، جس میں کفارہ یمین کے بارے میں فرمایا گیا ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ اتنا تو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، لیکن جو متتابعات کا لفظ ہے، 3 دن لگاتار روزے رکھنے، یہ جو متتابعات کا لفظ ہے یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی دیگر قرأت کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو یہ والے جو متتابعات کا لفظ ہے یہ منسوخ التلاوت ہے دون الحکم، یعنی اس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آپ نے کفارہ قسم روزوں کے ذریعے سے دینا ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو 3 روزے جو رکھنے پڑیں گے وہ متتابعات یعنی لگاتار ہی رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ 1-2 دن رکھ کے پھر آپ چھوڑ دیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ منسوخ التلاوت دون الحکم، یعنی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے۔ اس کی مثال جیسے شیخ و شیخۃ، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب دونوں زنا کریں فرجموہما، تو ان دونوں کو رجم کرو، ان دونوں کو سنگسار کرو، پتھر مار کر ہلاک کر دو، یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔
ये आयत की तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन इसका हुक्म बाकी है। ये इसी तरीके से हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात में फमल्लम यजिद फसियामु, जो शख़्स ये ना पाए तो फिर 3 दिन के रोज़े रखे मुतताबिआत लगातार। अब ये जो मुतताबिआत का लफ़्ज़ है ये हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात के अंदर ज़ायद है, जो बाकी क़िरात है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है, तो ये भी मनसूख़ तिलावत है दुनल हुक्म, यानी इसकी तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन इसका हुक्म अभी भी बरकरार है। इसी तरीके से एक और क़िरात है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिसमें फ़क़्तऊ अयदियहुमा की जगह पे फ़क़्तऊ अयमानहुमा है। देखें, चोर और चोरनी की सज़ा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। चोर और चोरनी उनकी सज़ा ये है कि उन दोनों के हाथ काट दो। लेकिन जो हज़रत बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात है इसमें अयदियहुमा की जगह पर अयमानहुमा का लफ़्ज़ है, यानी उन दोनों के दाएँ हाथ काट दो। तो अब ये ऐसी है जिसका तिलावत तो मनसूख हो चुकी है लेकिन हुक्म बाकी है। ज़ाहिर है जब चोर और चोरनी को सज़ा दी जाएगी तो उनका दायाँ हाथ ही काटा जाएगा, बाएँ हाथ उनका नहीं काटा जाएगा। यही फरमा रहे हैं कि वक़ौलिही, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल फ़क़्तऊ अयमानहुमा, उनके ईमान दाएँ हाथ काट दो। इसको ईमान नहीं पढ़ना है, इसको ईमान पढ़ना है। ईमान दाएँ हाथ को कहते हैं, ईमान तो ईमान को कहते हैं। मकान कौली अयदियहुमा, अयदियहुमा का जो लफ़्ज़ आता है कुरान मजीद में, अयदियहुमा की जगह पर ईमान का लफ़्ज़ है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात में। तो ये जो ईमानहुमा है ये ऐसा है जो कि मनसूख़ तिलावत है लेकिन हुक्म बाकी है। चोर और चोरनी को जब सज़ा दी जाएगी तो उनका दायाँ हाथ ही काटा जाएगा। कुरान मजीद की आयत को मनसूख़ करने की चौथी सूरत यह है कि कुरान मजीद के हुक्म में किसी वसफ़ को मनसूख़ करना। मतलब ये है कि उसके उमूम को और उसके इतलाक़ को मनसूख़ कर दिया जाए और उसकी असल को बरकरार रखा जाए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि नस के ऊपर इज़ाफ़ा करना। मिसाल के तौर पे मसह खुफ़ैन का इज़ाफ़ा करना गस्ल रिजलैन के ऊपर। अब देखिए कुरान मजीद के अंदर जब वज़ू का तरीका बताया गया तो पाँव का वज़ीफ़ा ये बताया गया, यानी पाँव के बारे में ये बताया गया कि आपने पाँव को धोना है वज़ू के अंदर। और इसके अंदर एक उमूम है, इसके अंदर एक इतलाक़ है, चाहे आपने मोज़े पहने हैं, चाहे आपने मोज़े नहीं पहने हैं, आपने करना क्या है, आपने पाँव को धोना है। तो कुरान मजीद का तकाज़ा ये है कि गस्ल रिजलैन ये वज़ीफ़ा है पाँव का, ना कि मसह खुफ़ैन। फिर बाद में हदीस मशहूर के ज़रिए से मसह खुफ़ैन का इज़ाफ़ा कर दिया गया गस्ल रिजलैन के ऊपर, और हमने ये कहा कि अगर तो मोज़े पहने हुए हैं तो फिर पाँव का वज़ीफ़ा पाँव का धोना नहीं है बल्कि मोज़ों के ऊपर मसा करना है। और जो गस्ल रिजलैन है ये उस वक़्त है जिस वक़्त मोज़े ना पहने हों। तो यहाँ पे देखें एक हुक्म मुतलक था, इस हुक्म मुतलक के एक जो वसफ़ था उस वसफ़ को मनसूख़ कर दिया गया, उसका जो इतलाक़ था, उसका जो उमूम था उसको ख़त्म करके, लेकिन जो असल हुक्म है, असल हुक्म को भी बरकरार रखा गया है। तो ये भी मनसूख़ की चौथी सूरत है जो कि कुरान मजीद के अंदर पाई जाती है। खुलासे कलाम ये है कि ये जो चौथी सूरत है जिसमें वसफ़ को मनसूख़ किया जाता है, हनफिया के नज़दीक ये नसख़ है। तो जब हनफिया के नज़दीक ये नसख़ है तो फिर इसके अंदर नसख़ के तमाम अहकामात जारी होंगे, और कुरान मजीद को अगर आपने मनसूख़ करना है हदीस के ज़रिए से तो फिर ख़बर मुतवातिर या ख़बर मशहूर का होना ये लाज़िम और ज़रूरी है। ख़बर वाहिद के ज़रिए से कुरान मजीद की आयत को मनसूख़ नहीं किया जा सकता है, जैसा कि सारी तफ़सील पहले गुज़र चुकी है। लेकिन शवाफ़ी के नज़दीक ये नसख़ नहीं बल्कि तख़सीस और बयान है, तो लिहाजा इसके ऊपर नसख़ के अहकामात भी जारी नहीं होंगे और इसके ऊपर तख़सीस और बयान के अहकाम जारी होंगे। तो शवाफ़ी चूँकि इसको नसख़ नहीं मानते हैं, इसको एक तख़सीस और बयान मानते हैं, तो जिस तरीके से तख़सीस करना ख़बर वाहिद से भी जायज़ और दुरुस्त होता है कि कुरान मजीद के अंदर एक हुक्म के अंदर उमूम हो, बाद में इस हुक्म की तख़सीस ख़बर वाहिद से कर दी जाए, ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त है। लिहाजा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक ऐसे अहकाम के अंदर ख़बर वाहिद के ज़रिए से भी कुरान मजीद के उमूम के अंदर तख़सीस करना जायज़ और दुरुस्त होगा। चौथी सूरत ये बयान की जा रही है आयत के मनसूख़ होने की कि हुक्म के अंदर वसफ़ को मनसूख़ कर दिया जाए। बाइन तौर के हुक्म का जो उमूम है उसको मनसूख़ कर दिया जाए, हुक्म का जो इतलाक़ है उसको मनसूख़ कर दिया जाए, लेकिन जो उसकी असल है उसको बरकरार रखा जाए। ये चौथी किस्म का नसख़ है जो कि कुरान मजीद की आयतों में वारिद होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि मिसाल के तौर पर नस पर किसी का इज़ाफ़ा करना, जैसा कि मस खुफ़ैन का इज़ाफ़ा किया जा रहा है गस्ल रिजलैन के ऊपर। अब गस्ल रिजलैन ये कुरान मजीद की नस यानी कुरान मजीद की आयत से साबित है, इसके ऊपर आपने मस खुफ़ैन का इज़ाफ़ा कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि गस्ल रिजलैन असाबित बिल किताबी, जो कि किताबुल्लाह से साबित है। अब किताबुल्लाह का तकाज़ा तो ये है कि गस्ल यानी धोना। एक बात तो अब यहाँ पर यह समझिए कि आपने इसको गस्ल पढ़ना है, इसको आपने गुस्ल नहीं पढ़ना। गस्ल कहते हैं धोने को और गुस्ल कहते हैं गुस्ल करने को। देखें कुरान मजीद में जो ज़िक्र किया गया है उसका तकाज़ा तो ये है कि धोना ये पाँव का वजीफ़ा हो, यानी पाँव के बारे में जो ज़िक्र किया जा रहा है वो ये है कि आपने पाँव को धोना है, पाँव के ऊपर मसा नहीं करना, चाहे मुतख़फ़्फ़िफ़न मोज़े पहने हों या मोज़े ना पहने हों, दोनों सूरतों के अंदर उमूम है, धोना है। लेकिन जो हदीस है, हदीस मशहूर ने इस इतलाक़ को मनसूख़ कर दिया, जो हुक्म मुतलक था कुरान मजीद के अंदर, इसके वसफ़ को मनसूख़ कर दिया है। अब इसका जो इतलाक़ है वो बाकी नहीं रहा है। तो अब जमहूर उलमा ये कहते हैं कि धोना उस वक़्त होगा लम यकुन लाबिसल खुफ़ैनी, जिस वक़्त वज़ू करने वाला मोज़े ना पहने हो, उस वक़्त पाँव का वजीफ़ा ये है कि पाँव को धोया जाएगा। फल आन, अब जो है जो धोना है ये वजीफ़े का बाद हिस्सा बन गया। पहले जो था वो वजीफ़े का कुल हिस्सा था, यानी पाँव का मुकम्मल वजीफ़ा ये था कि पाँव को आपने धोना है, चाहे मोज़े पहने हो चाहे मोज़े ना पहने हो।
उस वक़्त तक जिस वक़्त तक हदीस नहीं थी। जब हदीस आ गई है तो उसने इस वصف को मनसूख कर दिया है। अब जो धोना है ये पाँव का मुकम्मल वजीफ़ा नहीं है बल्कि बाज़ वजीफ़ा है, और उस वक़्त होगा जिस वक़्त मोज़े ना पहने हों। जब आपने मोज़े पहने हैं तो फिर उस वक़्त धोना ये पाँव का वजीफ़ा नहीं है बल्कि उस वक़्त मसह करना ये पाँव का वजीफ़ा है। ये वाला जो हुक्म है हज़रत फरमा रहे हैं कि हमारे नज़दीक ये मनसूख है, जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक ये तख़सीस और बयान है। हमारे नज़दीक चूँकि ये मनसूख है, और मनसूख के बारे में उसूल ये है कि ख़बर मुतवातिर और ख़बर मशहूर के ज़रिए से कुरान मजीद की आयत मनसूख हो सकती है, ख़बर वाहिद के ज़रिए से मनसूख नहीं हो सकती है। ये फरमा रहे हैं लिहाजा हमारे नज़दीक ये चूँकि नसख है, लिहाजा ख़बर वाहिद और ख़बर मशहूर से ही आप कुरान मजीद की आयत को मनसूख कर सकते हैं, जैसा कि तमाम नसख के अहकाम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक ये चूँकि नसख नहीं है बल्कि तख़सीस और बयान है, लिहाजा ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए से भी आप कुरान मजीद की आयत को मनसूख कर सकते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक का बाकिल बयानी जिस तरीके से बयान के बाकी हिस्सों के अंदर होता है कि वहाँ पर जैसे ख़बर वाहिद के ज़रिए से आप मनसूख कर सकते हैं, क़ियास के ज़रिए से आप मनसूख कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप कुरान मजीद की आयत को भी ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए से मनसूख कर सकते हैं। हत्ता अथबता ज़ियादतन नफ़ी अलल जल्दी। पहली बात तो यहाँ पर ये समझें कि नफ़ी का मतलब है जलावतन करना, और जल्द कहते हैं कोड़े मारने को। अगर कंवारा मर्द और कंवारी औरत यानी जो शादीशुदा नहीं है वो अगर ज़िना कर लेते हैं तो कुरान मजीद के अंदर जो इनकी सज़ा मज़कूर है वो ये है कि इनको कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला ने कोड़े मारने के ऊपर जलावतन करना इसका इजाफ़ा किया है। अब ये जो जलावतन करने का इजाफ़ा किया है ये ऐसी हदीस के ज़रिए से इजाफ़ा किया है जो कि हदीस ख़बर मुतवातर भी नहीं है, ख़बर मशहूर भी नहीं है, ख़बर वाहिद है। क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला इसको मनसूख मानते ही नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला ये फरमाते हैं कि ये तख़सीस और बयान है। जब ये तख़सीस और बयान है तो फिर हदीस के ज़रिए से भी आप कुरान मजीद की आयत की तख़सीस कर सकते हैं, कुरान मजीद की आयत का बयान कर सकते हैं। जबकि हनफिया के नज़दीक ये तख़सीस और बयान नहीं बल्कि नसख़ है, लिहाजा ख़बर मुतवातिर और ख़बर मशहूर का होना ज़रूरी है। खुलासा कलाम ये है कि जैसे बहुत से मसाइल हैं जिसमें हनफिया और शवाफ़ी का इख्तिलाफ़ है। हनफिया ये कहते हैं कि नसख़ है, लिहाजा अगर आपने कुरान मजीद की आयत के हुक्म के जो उमूम है उसको अगर आपने ख़त्म करना है या उसके अंदर आपने तख़सीस पैदा करनी है तो इसके अंदर नसख़ के उसूल जारी होंगे। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये नसख़ नहीं है बल्कि तख़सीस और बयान है, लिहाजा इसके अंदर तख़सीस और बयान के उसूल जारी होंगे। हनफिया के नज़दीक चूँकि ये नसख़ है लिहाजा ख़बर मुतवातिर और ख़बर मशहूर के ज़रिए से आप कुरान मजीद की आयत को मनसूख कर सकते हैं। जबकि शवाफ़ी के नज़दीक चूँकि ये नसख़ नहीं है लिहाजा ख़बर वाहिद के ज़रिए से भी आप कुरान मजीद की आयत की तख़सीस कर सकते हैं। जिस तरीके से शवाफ़ी ने कोड़ों की सज़ा के साथ जलावतन करना 1 साल के लिए इसको ख़बर वाहिद के ज़रिए से साबित किया है। वो ख़बर वाहिद क्या है वो यहाँ पर देख लें आप। ये फरमा रहे हैं कि हत्ता अथबता यहाँ तक साबित किया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला ने ज़ियादत नफ़ी कहते हैं जलावतन करना। जलावतन करने की जो सज़ा है इसका जो इजाफ़ा किया है अलल जल्दी कोड़े मारने के ऊपर, ये ख़बर वाहिद के ज़रिए से किया है। अब वो हदीस कौन सी है? वो हदीस ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल बिक्रु बिल बिक्री। अगर गैर शादीशुदा मर्द गैर शादीशुदा औरत के साथ ज़िना करता है तो फिर क्या जल्द मियतिन 100 कोड़े व तग़रीब व आमिन और 1 साल के लिए जलावतन किया जाएगा। अब ये ख़बर वाहिद है, लिहाजा इसके ज़रिए से किताबुल्लाह पर इजाफ़ा करना जायज़ है। वो किताबुल्लाह जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जल्द यानी कोड़े मारने के ऊपर दलालत करती है। ये कौन कहते हैं? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं। इसी तरीके से क़ियास के ज़रिए भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक कुरान मजीद की आयत की तख़सीस करना ये जायज़ और दुरुस्त है। अब इसकी मिसाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जो कफ़ारा क़त्ल है उसके बारे में जो इरशाद फरमाया कि जिस ग़ुलाम को आज़ाद किया जाएगा वहाँ पर मोमिना की कैद होना ज़रूरी है कि ईमान वाले ग़ुलाम को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन जो कफ़ारा ज़िहार है और इसी तरीके से जो कफ़ारा यमीन है इसके अंदर जो ग़ुलाम को आज़ाद किया जाएगा कुरान मजीद के अंदर इसमें मोमिना ईमान वाली कैद नहीं है। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला कफ़ारा ज़िहार और कफ़ारा यमीन को क़ियास करते हैं कफ़ारा क़त्ल के ऊपर। तो वहाँ पर देखें चूँकि ये कफ़ारा क़त्ल के ऊपर क़ियास करते हैं और क़ियास के ज़रिए से जो एक उमूम है उमूम के अंदर ये तख़सीस करते हुए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कफ़ारा ज़िहार के अंदर भी और कफ़ारा कसम के अंदर भी जो ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा उसका मोमिन होना ज़रूरी है। जबकि हनफिया के नज़दीक ये चूँकि नसख़ है और नसख़ के उसूल ये है कि ख़बर वाहिद के ज़रिए से और क़ियास के ज़रिए से आप कुरान मजीद की आयत को नसख़ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हनफिया के नज़दीक कफ़ारा ज़िहार के अंदर और कफ़ारा कसम के अंदर सिर्फ़ एक ग़ुलाम को आज़ाद करना ये काफ़ी है, मोमिना ग़ुलाम को आज़ाद करना लाज़िम और ज़रूरी नहीं है। यही फरमा रहे हैं कि ईमान की कैद का इजाफ़ा करना कफ़ारा यमीन में और कफ़ारा ज़िहार में। अब कफ़ारा यमीन में और कफ़ारा ज़िहार में ईमान की कैद नहीं है कुरान मजीद के अंदर, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कफ़ारा यमीन के अंदर भी कफ़ारा ज़िहार के अंदर भी मोमिन ग़ुलाम का आज़ाद करना ज़रूरी है। वो क़ियास करते हैं इसको कफ़ारा क़त्ल के ऊपर। कफ़ारा क़त्ल की जो आयत है कुरान मजीद के अंदर वो तो ईमान की कैद के साथ मुक़य्यद है कि अगर किसी ने किसी को गलती के साथ कत्ल कर दिया है और फिर उसके ऊपर जो कफ़ारा है उसने ग़ुलाम आज़ाद करना है तो वो ग़ुलाम मोमिन आज़ाद करेगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला कफ़ारा क़त्ल के ऊपर कफ़ारा यमीन और कफ़ारा ज़िहार को भी क़ियास करते हैं। तो उनके नज़दीक इजाफ़ा करना ये जायज़ है किताबुल्लाह के नस के ऊपर जो दलालत करती है मुतलक पर। अब यहाँ पे देखें किताबुल्लाह में जो आयत है कफ़ारा यमीन की और कफ़ारा ज़िहार की वो मुतलक है। मुतलक ग़ुलाम का आज़ाद करना ये काफ़ी है, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो मोमिन ना हो।
لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مطلق کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے اس کے اندر تخصیص کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مومن ہونا ضروری ہے، جو غلام آپ آزاد کریں گے۔ اگر غلام آپ ایسا آزاد کریں جو مومن نہیں ہے تو پھر آپ کا کفارہ ظہار اور کفارہ قسم ادا نہیں ہوگا۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اس جیسی جو مثالیں حنفیہ اور شوافی کے درمیان وہ کثرت کے ساتھ ہیں، یعنی بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہے، لہذا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شوافی کے نزدیک نسخ نہیں ہے بلکہ تخصیص ہے، لہذا شوافی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس کو کر دیتے ہیں۔